فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی آئی پی ایس نے ڈی سی پی سائبر کرائمز سائبرآباد شری بالا بی کی جانب سے سائبرآباد پولیس کی جانب سے باوقار ڈیٹا سیکیورٹی کونسل آف انڈیا ایکسلنس ایوارڈ 2024 حاصل کرنے پر تعریف کی۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کو سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا کے تحفظ میں سائبر کرائم یونٹ سائبرآباد کی شاندار شراکت کو تسلیم کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے ڈی ایس سی آئی ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سائبرآباد پولیس کو سائبر خطرات سے نمٹنے اور سائبر سیفٹی کو یقینی بنانے میں اس کی سرشار سائبر کرائم یونٹ کے ذریعے اختراعی اور مستقل کوششوں کے لیے پہچانا گیا، جس میں شامل ہیں سائبر کرائم پولیس اسٹیشن CCPS، سائبر کرائم کیسز کی ایک وسیع رینج کو حل کرنے والا ایک خصوصی یونٹ، تلنگانہ پولیس سینٹر آف ایکسلنس 2023 میں قائم کیا گیا۔ یہ سینٹر سائبر سے محفوظ ماحول کو فروغ دینے کے لیے صنعت، حکومت اور بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کو متحد کرنے والے ایک باہمی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ سائبرآباد پولیس نے 45 دنوں میں 3 کروڑ 30 لاکھ روپے مالیت کے 1100 چوری شدہ اور گم شدہ موبائل فونز کی بازیافت۔ ڈی سی پی کرائمز کے نرسمہا آئی پی ایس نے سائبرآباد پولیس کی موبائل بازیابی کی کوششوں کی ستائش کی۔ ایک اہم پیش رفت میں ڈی سی پی کرائمز کے نرسمہا کی قیادت میں آئی پی ایس، سائبرآباد پولیس کی CCSIT سیل، CCRB CAT اور سوشل میڈیا ٹیموں نے گزشتہ 45 دنوں میں 1100 مسروقہ اور گم شدہ موبائل فونز کو کامیابی کے ساتھ برآمد کیا۔ سینٹرل ایکوپمنٹ آئیڈینٹی رجسٹر پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے برآمد شدہ فون، جن کی قیمت 3 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے، سائبرآباد سی پی آفس میں منعقدہ ایک رسمی تقریب میں ان کے حقیقی مالکان کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی سی پی کرائمز کے نرسمہا آئی پی ایس نے کہا، ہماری روزمرہ کی زندگی میں موبائل فون ایک اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ یہ بازیابی مہم سائبرآباد پولیس کے شہریوں کو سائبر کرائم سے بچانے کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ موبائل چوری ایک مستقل مسئلہ ہے، اکثر حساس معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سائبر کرائمز کے ذریعے استحصال کیا جاتا ہے، بشمول بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کے باوجود۔ بہت سے لوگ اپنے چوری شدہ آلات کو غلط استعمال سے کیسے روکا جائے اس سے لا علم رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورٹل کے نفاذ کے بعد سے انہوں نے صرف اس سال 5500 ڈیوائسز سمیت 7500 موبائل فونز کی بازیابی میں سہولت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جیسے کہ اپنے آلات کو محفوظ رکھیں اور دھوکہ دہی یا مشکوک کالوں سے محتاط رہیں۔ آن لائن لنکس جو عام طور پر مجرموں کے ذریعے متاثرین کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے دور رہیں، انہیں اوپن نہ کریں۔ یوتھ کانگریس عادل آباد ضلع نائب صدر عرفات احمد خان نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے ترقیاتی پروگراموں اور فلاحی اسکیموں کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی مکمل کوششیں کریں گے۔ پارٹی کے اعلیٰ حکام کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے وہ اس راستے پر قدم بقدم چلیں گے۔ یہ بات انہوں نے عادل آباد شہر کے پریس کلب میں منعقدہ پریس میٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ عرفات خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ کانگریس پارٹی میں اس نعرے غریب بھی سیاست میں آ سکتا ہے کے تحت شامل ہوئے ہیں، جو کہ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے دیا تھا۔ انہوں نے حالیہ یوتھ کانگریس انتخابات کو کامیاب ہونے والے تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی حمایت اور تعاون پر اپنی محبت اور شکریہ پیش کیا۔ عرفات خان نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت کی پالیسیوں کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ویژن کے تحت چلائی جانے والی عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے یوتھ کانگریس ہمیشہ سرگرم رہے گی۔ اس میں عادل آباد سے میں عرفات احمد خان یوتھ کانگریس ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ بنا ہوں 2945 ووٹس لے کے، اور اسی کے ساتھ ہمارے پینل کے سنگا اشوک جس نے 720 ووٹس لیے، اور اس کے ساتھ ہمارے عادل آباد اسمبلی پریزیڈنٹ ناہید جی نے 1150 ووٹ لیے، اور عادل آباد ٹاؤن پریزیڈنٹ سگت کمار یہاں سے جیتے ہیں۔
जो ये ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शंस है ये राहुल गांधी जी की तरफ से हर बार तेलंगाना में होते हैं, जिसमें एक गरीब का बच्चा भी पॉलिटिक्स के अंदर आ सकता है। मैं उसी तरीके से आज आदिलाबाद के 5000 वोटर्स को शुक्रिया अदा करता हूं, थैंकफुल करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को वोट दे के जिताया है। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब का जो भी प्रजा पालना है और हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है हमारे गवर्नमेंट के, वो स्कीम्स को हम घर घर ले जाने का काम करेंगे। जो भी हमारे पैनल के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग से ऑफिस बैरियर्स, न्यूली इलेक्टेड जो ऑफिस बैरियर्स से जो सेकंड आए हैं, मैं उन्हें भी सबको मुबारकबाद देता हूं कि वो आदिलाबाद के अवाम के साथ खड़े रहे और जो कोई भी गवर्नमेंट के स्कीम से वो घर घर ले जाने की कोशिश करे। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का ड्रीम है प्रजा पालना, उसके ऊपर खड़े रहने की पूरी कोशिश करें। CITU जिले सदर बोजा आशना ने कहा है कि वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए जायज तरीके से एहतजाज कर रहे आशा वर्कर्स को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मसाइल के हल के लिए पुरअमन तौर पर हैदराबाद जाने वाले आशा वर्कर्स के खिलाफ लाठी चार्ज की सख्त मजम्मत की। आशा वर्कर्स ने CITU के ज़रिए एहतमाम जिले मुस्तकिर में पुरानी कौमी शाहराह पर बस स्टैंड के रूबरू एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत का लामती पुतला नजर आतिश किया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर CITU जिले सदर बोजा आशना ने कहा है कि इंतखाबात से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो आशा वर्कर्स की तनख्वाह में 18,000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इसे नाफिज करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रही। జిల్లా కేంద్రంలో నిన్న చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమము ఆశాలది ఉండే మరి ముందస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి నిన్న అరెస్టులు చేయడం జరిగింది। ఆశా కార్యకర్తలను ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేయడం జరిగింది। మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అరెస్టులు చేయడం కాదు, ఆశల సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఇందిరా పార్క్ ముందర పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నా కార్యక్రమం చేపడితే महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 424 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि महकमे पंचायती राज और देही तरक्की के महकमे के लिए 108, अक़लियती बहबूद के लिए 100, रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल के लिए 65, बिजली के महकमे के लिए 57, म्यूनसिपल और शहरी तरक्की के महकमे के लिए 13, प्रवासी प्रजावानी के लिए 5 और दीगर महकमों के लिए 76 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। SARC सार्क इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद चेयरमैन ग्रुप पूनम राव की क़ियादत में आदिलाबाद शहर मुस्तक़िर के प्रेस क्लब में एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में सार्क नेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कई खिदमात फराहम की जा रही। उन्होंने कहा कि हम तलबा, नौजवानों और देही इलाकों के लोगों को क़वानीन से आगाह करके उनमें शोरबेदार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गई, एसोसिएशन की जानिब से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबको इंसानी हुकूक के कानून का इल्म होना चाहिए। इस मौके पर जिले चेयरमैन राज सिद्धार्थ मोहम्मद आलम के अलावा दीगर मौजूद थे। सार्क नेशंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स అసోసియేషన్ ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా చైర్మన్ నా పేరు గుర్రం పున్నామరావు। గత 9 సంవత్సరాలుగా ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం। దానిలో భాగంగా ఈరోజు డిసెంబర్ 10 ప్రపంచ మానవ దినోత్సవం 1948 డిసెంబర్ 10న ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఆమోదం పొందింది। హక్కు లేని సమాజం సమానం। దీన్ని పురస్కరించుకొని మేము లోకల్ సేవలు కానీ వివిధ వర్కులు కానీ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు, విద్యార్థులకు, యువకులకు, యువజన నాయకులకు చట్టాలపై అవగాహన సంస్థలు కల్పిస్తామని, అదేవిధంగా విద్యార్థులకు కూడా కొంచెం చట్టం వైపు చూడాలని
राज्य सभा के चेयरमैन जगदीप धुनकर के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। अरकान पार्लियामेंट का इल्जाम है कि चेयरमैन का रवैया यकतरफा है, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर ऐवान से वॉकआउट करना पड़ता है। सुबह अपोजिशन ने चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की, जिस पर 50 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए। ये दस्तखत इंडिया इत्तेहाद की जमातों जैसे तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, DMK, RJD और दीगर के अरकान ने किए और ये नोटिस राज्यसभा सेक्रेटरीट को पेश किया गया। अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करना भारतीय पार्लिमानी तारीख में पहली बार हुआ है। अपोजिशन अरकान का कहना है कि जब राज्यसभा में अपोजिशन लीडर माइक पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो चेयरमैन उन्हें अक्सर रोक देते हैं। खासतौर पर कांग्रेस सदर और अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को बार बार बंद कर दिया जाता है। अपोजिशन का कहना है कि पार्लियामेंट को उसूलों और रिवायात के मुताबिक चलाया जाना चाहिए, लेकिन जब भी हम अपनी शिकायत पेश करते हैं चेयरमैन सिर्फ हमें अपने चैम्बर में बुलाकर समझौता करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि क़वायद पर अमल किया जाए। सरकर्दा साइंसदान व साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम की तहरीक से मुतासर होकर तलबा के जरिए तैयार किए गए रॉकेट DSRS LV को 2027 में लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। ये ऐलान साइंस में फाउंडेशन के इंटरैक्शन इंडिया डिवीजन की जानिब से किया गया है। इसके मुताबिक मुल्क भर से जुमला 1,80,000 तलबा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़दा एक इजलास में DSRS LV 2027 प्रोजेक्ट के चीफ ऑफिसर विष्णु, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर बोचतिया और कई तलबा ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2047 स्कूलों के साथ मिलकर मुकम्मल किया जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मक्के मुकर्रमा मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जहां दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि शहर अल-सौदा मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा, जहां दर्जे हरारत सिर्फ 4 डिग्री रहा। महकमे ने कहा है कि दीगर गर्म शहरों में जाजान है, जहां 32 सेंटीग्रेड, इसी तरह जिद्दा और अल-खनफजा में 31, जबकि मदीना मुनव्वरा और यनबा में 30 सेंटीग्रेड रहा। दारुल हुकूमत रियाद का मौसम एक हफ्ते से गैर यकीनी चल रहा, दर्जे हरारत अचानक कम ज्यादा हो रहा। वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का जोर तेज तर हुआ है और इस दौरान श्रीनगर में रवां सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले एक हफ्ते के दौरान खुश्क और सर्द मौसमी हालात जारी रह सकते हैं। इस दौरान श्रीनगर में रवां सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है, जहां कम से कम दर्जे हरारत -5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वसत कश्मीर में वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग वादी का सर्द तरीन इलाका रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जनूबी कश्मीर का जिले शोपियां वादी का दूसरा सर्द तरीन मुकाम रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि सयाहती मुकाम पहलगाम तीसरे दर्जे पर रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम अजला में शबाना दर्ज हरारत बिला तरतीब -8.3 डिग्री सेंटीग्रेड और -5.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शुमाली कश्मीर के बारामूला और बांडीपुरा अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -5.1 डिग्री सेंटीग्रेड और -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वसत कश्मीर के बडगाम और अनंतनाग अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड और -7.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलविस अफराद को माफी देने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलविस अफराद को माफी देने का ऐलान किया है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो उन फसादियों को माफ कर देंगे जिन्होंने 6 जनवरी को US कैपिटल पर हमले में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने पर 1572 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई थी और सजाएं सुनाई गई थी। इसे अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी मुजरिमाना तहकीकात करार दिया गया। गिरफ्तार अफराद को ममनुआ इलाके में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने से लेकर बगावत की साजिश और पुरतशद्दुद हमले तक के जुराइम के इर्तिकाब पर सजा दी गई थी।
शाम में 24 साल तवील इख्तिदार के खात्मे के बाद बशारुल असद ने अपने खानदान समेत रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पनाह हासिल कर ली, जहां उनसे रूसी सदर की मुमकिना मुलाकात के हवाले से गैर मुसद्दिक़ा खबरें आने लगी थी। क्रेमलिन ने अब एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बशारुल असद से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। सदर पुतिन और बशारुल असद के दरमियान कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। उधर शामी हुकाम ने भी बशारुल असद की मॉस्को में मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। मॉस्को में शामी हुकाम ने एक बयान में कहा है कि बशारुल असद ने मिशन से कोई राब्ता नहीं किया है। रूस का कहना है कि शामी रहनुमा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी गई है और गुज़िश्ता रोज रूसी मीडिया ने क्रेमलिन में एक नामालूम जरिए के हवाले से कहा था कि असद और उनके खानदान के अफराद मॉस्को पहुंचे हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें पनाह दी गई है। अल जजीरा के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने तस्दीक की कि शाम के माजूल सदर बशारुल असद को रूस में सियासी पनाह दी गई थी। उनका कहना था कि ये फैसला सदर व्लादिमीर पुतिन ने जाती तौर पर किया था। पेस्कोव ने मॉस्को में सहाफियों के सवाल पर असद के मखसूस ठिकाने पर तबसरा करने से इनकार किया और कहा कि पुतिन का उनसे मुलाकात का कोई इरादा नहीं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।